Today, let us observe the reaction between concentrated hydrochloric acid and concentrated sodium hydroxide, and between ammonium chloride and barium hydroxide. Then identify the reaction. The reaction between concentrated hydrochloric acid and concentrated sodium hydroxide is a neutralization reaction resulting in the formation of salt and water. To conduct this experiment, we need the following material: dropper, concentrated hydrochloric acid, concentrated sodium hydroxide, ammonium chloride, barium hydroxide, beaker, glass rod, thermometer, spatula, and moist pH paper. Let us note the room temperature. Room temperature is 25 degrees Celsius. Take a clean and dry beaker and add 10 ml of concentrated hydrochloric acid. To it, add 10 ml of concentrated sodium hydroxide. Care should be taken while adding sodium hydroxide in drops. बेटा यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं और कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। डाइल्यूट के अंदर आपने डाल दिया वो ठीक है, लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड में डाल देते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। Stir the mixture well with the help of thermometer. Neutralization occurs resulting in the formation of salt and water. Note the temperature again. Temperature is 45 degrees Celsius. Temperature increases as neutralization occurs. This is due to the fact that heat is separated. We can also touch the beaker and feel the heat produced. Care should be taken while touching the beaker after the reaction. Since heat is involved and it is an exothermic reaction. Note the temperature again after cleaning the thermometer. Room temperature is 25 degrees Celsius. Take a clean and dry beaker and add the new mixture, that is ammonium chloride and barium hydroxide. नियर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हो गया, जैसे अगर मैं इस समय भी टेम्परेचर यहाँ का लूंगा तो 25 डिग्री सेल्सियस के करीब आएगा। गलत बात, लैब कोट पहनना चाहिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम
temperature is 12 degrees Celsius. Since the heat is absorbed, hence it is an endothermic reaction. We can detect the ammonia liquid either by smelling it or by detecting with the help of moist liquid paper. क्या हुआ बेटा? Beta, these experiments don't need to be accurate. From this The thing is, experiment, these we can experiments infer are that quite the fast. reaction between concentrated hydrochloric acid and concentrated sodium hydroxide is an exothermic reaction as heat is involved, while the reaction between ammonium chloride and barium hydroxide is an exothermic reaction and heat is absorbed. Leave it. हाँ, तो हम ये कहानी सारी की सारी शुरू कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट इट. कुछ हम चीजें कर चुके हैं ऑलरेडी और कुछ अब हम करेंगे. ठीक है. ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, दीज एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग डन इन द कैलोरीमीटर. और कैलोरीमीटर में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट को हम इस तरीके से करते हैं कि टेम्परेचर चेंज कम हो, इतना कम हो कि हम इसको आइसोथर्मल कंडीशन मान सके. ठीक है. वी आर मेजरिंग द चेंज इन टेम्परेचर टू मेजर द हीट चेंज. ठीक है. एंड इन एडिशन टू दैट वी आर फाइंडिंग आउट, but still the temperature change is so less that we can consider it isothermal. ठीक है. We are doing the reaction and measuring the temperature change to find the heat change. But the temperature change is so small that we can consider the reaction to be isothermal. ठीक है. हर केमिकल रिएक्शन इसी तरीके से किया जाता है. ठीक है. ओके. तो हम यहां पर एक्चुअली एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं पर मोल, whenever we say the energy is delta H per mole, enthalpy change per mole, this is not the mole of the reactant, this is not the mole of the product, this is the mole of the reaction. ठीक है. जिस तरीके से भी ये इक्वेशन लिखी जाती है, जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जितने भी रिएक्टेंट उसके अंदर लिखे गए हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, जब वो अमाउंट कंज्यूम हो जाता है तो दैट बिकम्स अ मोल ऑफ रिएक्शन. ठीक है. इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ओके देन. नाउ ये हमने सारी की सारी चीजों की बात की. अब हम यहां पे सारे के सारे रिएक्शंस हैं. नाउ वी हैव Hausdorff constant heat summation. Hausdorff constant heat summation is quite simple. If a reaction takes place in several steps, then its standard state. Sir, please unmute yourself. अरे यार, मेरे को फिर किसी ने म्यूट कर डाला. Sir, please unmute yourself.
कर दिया मैंने अपने आप को अनम्यूट, लेकिन किया किसने था मुझे म्यूट? ओके नाउ, अब तो मैं सुनाई दे रहा हूँ? यस सर। ओके गुड, यस सर। ठीक है ठीक है। तो हमारे पास ये सारे के सारे रिएक्शंस हैं, सारे के सारी एनर्जीज हैं। अब हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन इज क्वाइट इजी, क्वाइट अंडरस्टूड, ठीक है। और जब हम इसकी बात करते हैं, if the reaction takes place in several steps, then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of each individual step. Intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature. मतलब कि इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहिए, और वो सही तरीका है कि whether the reaction takes place in a single step or multiple step, the standard enthalpy change remains a constant. And the reason for it is enthalpy is a state function. So that is the reason for it to work. ठीक है, ओके ये हम देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंथैल्पीज ऑफ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो सकता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डिड यू डू दिस रिएक्शन? कर लिए वाला? कर लो फिर। हो गया क्वेश्चन? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था ना, बस वहां पे फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जगह स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे दिया था। But standard enthalpy of combustion of hydrogen and the standard enthalpy of combustion of carbon, they are same as the standard enthalpy of formation of water and standard enthalpy of formation of carbon dioxide. Reaction तो सेम ही है, एक ही रिएक्शन कई एंथैल्पीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो Standard enthalpy of carbon combustion are the standard enthalpy of formation of carbon dioxide and water. ठीक है ना, वही मैं कह रहा हूं। ठीक है, तब हमने वहां पे ग्लूकोज की बात की थी, यहां पे बेंजीन की बात कर रहे हैं।
Again, यहाँ पे 6 times the carbon standard enthalpy of formation of carbon dioxide plus 6 times that, 3 times the standard enthalpy of formation of water is equal to the standard enthalpy of combustion of benzene. ठीक है. एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो गई ना, उन दोनों को सम कर दोगे तो माइनस कर दोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन. ठीक है. तो तीनों इक्वेशन अलग अलग लिख लो और उन तीन इक्वेशन को यहां पे इन्होंने इक्वेशन ना बड़ी लंबी चौड़ी लिख देते हैं ये. तो अगर हम छोटा सा लिखें तो हमारे पास ये आएगा. एक इक्वेशन है C solid प्लस O2 gaseous gives CO2 gaseous. ठीक है. इसका डेल्टा H1 लिख देते हैं इसको. ठीक है. Then we have H2 gaseous plus half O2 gaseous. एक मिनट रुक जाओ बेटा. Gives us H2O liquid. Let us write it as delta H2. ठीक है. Then we have C6H6 liquid. ठीक है. Plus 15/2O2 gaseous gives us 6CO2 gaseous plus 3H2O liquid. Now this is delta H3. ठीक है. और हमें चाहिए कौन सी इक्वेशन? हमें इक्वेशन चाहिए 6C solid plus 3H2 gaseous gives us C6H12 C6H6 liquid. ठीक है. Now this is delta H4. हाँ बेटे, लेकिन ये इस तरीके से इक्वेशन लिखोगे तभी तुम आसानी से देख पाओगे. दैट इज द थिंग. यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तुम इक्वेशन लिख देते हो तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे. अगर इक्वेशन नहीं लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है. इस ऐसे इक्वेशन बिना ऐसे क्वेश्चंस बिना इक्वेशन लिखे नहीं हो सकते. कोई बात नहीं. अब समझ में आ गया. ओके. तो करना कुछ नहीं है. सीधी सी बात यह है कि हमें 6 कार्बन चाहिए तो दिस इक्वेशन नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 6. दिस इक्वेशन नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस इक्वेशन नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय -1. ठीक है. क्योंकि मुझे C6H6 राइट साइड पे चाहिए, इसमें लेफ्ट साइड पर है. ठीक है. कर लो, ये आ जाएगी इक्वेशन. इज दिस क्लियर? ठीक है. So this should be the answer you are going to get. ठीक है. And then we have the enthalpy of atomization. अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को आप एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हो. नहीं, सब्लिमेशन के लिए अगर ये मेटल्स की बात करते हो तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. कार्बन के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. लेकिन अगर हम बात करते हैं आयोडीन के लिए तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज नॉट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि आयोडीन वेपर फेज में I2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. क्लियर? बेटा बात ये है कि हर चीज के लिए डेफिनेशन अलग हो जाती है. जैसे अगर हम कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात करते हैं तो सब्लिमेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट द सॉलिड इनटू इट्स मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स. ठीक है. अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स के लिए इट इज एटम्स. अगर मैं कोवेलेंट नेटवर्क एलिमेंट्स की बात करूं बोरॉन और कार्बन के लिए तो वहां पे सब्लिमेशन इज एटोमाइजेशन. पर हर किसी के लिए सब्लिमेशन एटोमाइजेशन नहीं होगा. इज इट क्लियर? मेटल्स के लिए है, ग्रेफाइट डायमंड के लिए है, ओके, बोरॉन के लिए है, आयोडीन के लिए नहीं है, सल्फर के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि सल्फर भी वेपर फेज में एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है.
क्लियर? अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, चलिए अगर हम सब्लिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड का सब्लिमेशन भी एटोमाइजेशन नहीं है, क्योंकि वो आयंस में ब्रेक करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट द थिंग इज। Ions and atoms are not same. तो बेटा बात पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मान लीजिए मैं HCl की बात करूं, देखो अगर मैं दो रिएक्शंस की बात करता हूं, बहुत छोटे छोटे दो रिएक्शंस की, एक मैंने लिखा HCl, नाउ HCl गिव्स अस, भाई क्या कर रहे हो ये? कृष्णा आई थिंक अब हो गया होगा वो क्वेश्चन तुमसे। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक रिएक्शन की बात करता हूं, यहां पे मेरे पास HCl है, HCl goes to form H plus gaseous plus Cl minus gaseous। ठीक है, यहां पे ये gaseous था, ये क्वेश्चन ये है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है HCl gaseous gives us H gaseous and Cl gaseous। फाइन, अब इसके अंदर ये बहुत सिंपल है, दिस इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, इतनी देर तो ये टूट जाएगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो पहले हमें चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज गोइंग टू मेक इट H प्लस। देन वी नीड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, जो बनाएगा इसे Cl माइनस। तो यहां पर ये दो एनर्जीज इन्वॉल्व है। अगर मैं इसकी अगर एनर्जी की बात करता हूं, दिस बॉन्ड एनर्जी समथिंग अराउंड 300 किलो जूल्स पर मोल। क्लियर? यहां पर जब मैं हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन की एनर्जी बात करता हूं, ये 1312 किलो जूल्स पर मोल है। ठीक है, और अगर मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूं, तो वो -348 किलो जूल्स पर मोल है। तो ये वाला जो रिएक्शन है, दिस इज समथिंग लाइक नियर अबाउट 1000 किलो जूल, और ये वाला 300 किलो जूल है। तो दोनों एनर्जीज, दोनों रिएक्शन सेम नहीं है। ठीक है, तो ब्रेकिंग अ स्पीशी इनटू आयंस एंड ब्रेकिंग अ स्पीशी इनटू एटम्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। H प्लस के ऊपर जो एनर्जी आपने दी है वही आप एनर्जी वापस ले रहे हो ना। कंबाइन हो के क्या, हम तो यहाँ पे ब्रेकिंग की एनर्जी निकाल रहे हैं ना, तो होंगे ही जब एनर्जी उतनी रिलीज होगी तो। ठीक है ना, दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड। ओके, तो अब यहां पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज एंथैल्पी, यहां पर मेटल्स के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यहां पर के सेम है। Now we can talk about the bond energy, bond enthalpy. Bond enthalpy की बात हमने कर ली, it is the average of the various energies. हमारे पास ये bond dissociation enthalpy, हमारे पास bond mean bond enthalpy है।
तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी इज एक्चुअली अंडरस्टूड बाय बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी तीनों सेम होती है। ये एक ही तो बॉन्ड है, एवरेज भी वही आनी है, टोटल भी वही आनी है, इंडिविजुअल भी वही आनी है। ओके तो हाइड्रोजन की एटोमाइजेशन एनर्जी उसकी बॉन्ड एनर्जी भी है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड एनर्जी और एटोमाइजेशन एनर्जी भी सेम हो जाती है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी वगैरह बढ़िया है, ये तो हमने किया था। ठीक है, अब ये देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि मीन CH बॉन्ड एंथैल्पी इन मीथेन इज दिस, इट हैज बीन फाउंड दैट द मीन CH बॉन्ड एंथैल्पी डिफर स्लाइटली फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड बट इट डज नॉट डिफर अ ग्रेट डील। तो इस वजह से हम यहां पर ये बॉन्ड एंथैल्पीज का एक टेबल बना सकते हैं। ये सही नहीं है बट एटलीस्ट इट विल बी एबल टू गिव अस अ अप्रॉक्सीमेट आइडिया अबाउट द डिफरेंट कंपाउंड्स। क्योंकि तो डिपेंड करता है किसमें बॉन्ड है। हर जगह चीज डिपेंड करती है, क्योंकि वही बात है ना कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर थर्मोकेमिकल इक्वेशन सेम तब होती है जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, स्टेट, वेट सब कुछ सेम हो। तो अगर आपने कंपाउंड चेंज कर दिया तो वेरी ऑब्वियसली थर्मोकेमिकल इक्वेशन तो सेम नहीं है, तो एनर्जी सेम कैसे हो सकती है? एनर्जी भी तो डिफर करेंगी। इज इट ओके? पर हम यहां पर यूज कर पा रहे हैं। और ये वाला आपको रिएक्शन लिखवाया था ना कि डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, वो तो सीधा सीधा हमने बॉन्ड हाइपर साइकिल से निकाल लिया था। ओके, लैटिस एंथैल्पी। अच्छा, एक मजेदार बात यह कि मेटल्स के लिए लैटिस एंथैल्पी, एटॉमाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी तीनों सेम है। ये भी बता दिया था मैंने आपको, क्योंकि लैटिस का मतलब ये होता है टू ब्रेक द सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सब्सटेंस वन मोल लैटिस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आयनिक सब्सटेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, बाकी सबके लिए मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए, और नेटवर्क के लिए एटम्स। और मेटल्स के लिए सब्लिमेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी और जो एटोमाइजेशन एनर्जी तीनों सेम है। ठीक है ना? ओके ठीक है, ओके ये रहा बॉन्ड हाइपर साइकिल हमारे पास। आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास आ गया। ठीक है, फाइन। अब एंथैल्पी, अब ये देखो ये सारे के सारे जो एंथैल्पीज ना ई एफ, ये रैंडम एंथैल्पीज है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, किसी को डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया, तो वह एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। किसी को डाइल्यूट कर दिया तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन हो गया। एंड नाउ वी कम ऑन टू द थिंग कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी, feasibility, possibility। ठीक है, ये तीनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। रिएक्शन इज फीजिबल, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज पॉसिबल। तीनों का क्राइटेरिया यही है, तीनों का रीजन यही है, तीनों का अंडरस्टैंडिंग यही है कि a reaction which can continue on its own once started is called a spontaneous, feasible or possible reaction। ठीक है, the heat flows unidirectional from higher temperature to lower temperature always। You cannot make the heat flow from a lower temperature to higher temperature without expenditure of more of energy। अब देखो यहां पर जो एसी चल रहा है वो एक काम कर रहा है, वो हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, अपने आप नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस रखना होता है, हीट अपने आप फ्लो करती है। तो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर इज स्पॉन्टेनियस, फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर इज नॉन स्पॉन्टेनियस।
अभी जैसे अगर मैं इसे एसी को ऑफ कर देता हूं, थोड़ी देर के बाद अपने आप कमरा गर्म हो जाएगा. यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, इट विल बिकम हॉट ऑन इट्स ओन. ठीक है. So what do we mean by spontaneous reaction? Spontaneous reaction is common observation that spontaneous reaction is the one which occurs immediately when contact is made. ना, ये spontaneous नहीं है, ये instantaneous reaction है. ये spontaneous नहीं है, ये instantaneous reaction है. Spontaneity की ये definition नहीं है. ठीक है? Okay. So ये गलत है, ये immediately word गलत है. Take the case of combination of hydrogen and oxygen. These gases may be mixed at room temperature and left for many years without observing any perceptible change. ठीक है. कई हजार साल लग जाएंगे तब भी नहीं बनेगा. It is still called a spontaneous reaction. So spontaneity means having the potential to proceed without the assistance of external agency. Having the potential to proceed. Potential. Proceed करे ये जरूरी नहीं है. वही तो बोल रहा है कि तुम्हें लगता होगा, जैसे हम बोलते हैं अरे क्या स्पॉन्टेनियस पर्सन एकदम से काम करता. नहीं, वो ये कि थर्मोडायनामिक्स की स्पॉन्टेनिटी ये नहीं है. ओके. थर्मोडायनामिक्स डजंट डील विद टाइम. हो सकता है, नहीं हो सकता, बात खत्म. It has a capacity to continue its own once started. ठीक है. A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency. सारे के सारे spontaneous process irreversible होते हैं. Decrease in enthalpy हो सकता है क्राइटेरिया spontaneity का, बट हमेशा नहीं. ठीक है. जैसे चाय ठंडी हो जाती है तो ठीक है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया. लेकिन एक बात ये भी तो देखो, बर्फ भी तो पिघल जाती है, आइसक्रीम गर्म भी तो हो जाती है, फिर क्या है स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया? तो एंथैल्पी मे बी द स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया बट नॉट नेसेसरली. ठीक है. एंट्रोपी, रैंडमनेस. बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें लगता ही नहीं कि कोई एनर्जी का चेंज हुआ है, लेकिन वो फिर भी होते हैं. जैसे कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये जो गैस हम सांस छोड़ रहे हैं वो एकदम से स्प्रेड होती जा रही है. व्हाई डज इट स्प्रेड? पानी में इंक डाल दो, इंक की ड्रॉप डाल दो, कौन सा एनर्जी में चेंज हो रहा है? कोई एंथैल्पी में चेंज तो हो ही नहीं रहा. दो गैसेस, हाँ, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन होता ही क्यों है? टू मिक्स. व्हाई? रीजन. क्यों होता है? हाँ, ये होता है. क्यों होता है? द आंसर इज एंट्रोपी. पूरा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, मिक्सचर फॉर्मेशन, सॉल्यूशन फॉर्मेशन, सब कुछ एंट्रोपी है. उसका रीजन एंट्रोपी है. Why a mixture is more stable than a pure substance? मिक्सचर बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन मिक्सचर को सेपरेट करना, प्योर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. क्यों होता है? बिकॉज मिक्सचर फॉर्मेशन इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है. नाउ हमारे पास ये सारे के सारे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब हम एंट्रोपी की बात करें. वी इंट्रोड्यूस अनदर thermodynamic function, entropy denoted as S. The above mentioned disorder is the manifestation of entropy. Disorder, disorder, disorder. I believe मैंने बता दिया था disorder क्या होता है. Disorder is disarrangement. It is not the state, it is disarrangement. ठीक है. एक अरेंजमेंट आपने डिफाइन कर दी, वो ऑर्डर है. उसके अलावा जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो डिसऑर्डर है. ओके. तो ये हमारे पास है डिसऑर्डर.
Entropy is a measure of the degree of randomness or disorder. Entropy is not exactly the disorder. It is more like the measure of disorder. कुछ इसी तरीके से जैसे टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसी तरीके से एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर. How do you measure entropy? जितनी हीट सप्लाई की उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दो. S by T. Oh, Q by T. Okay? That's what we have defined. Entropy change. ये रहा. Q reversible by T is entropy change. ठीक है? और हम एंट्रोपी को प्रॉपरली भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है? फाइन. और हाँ, ये एक बात का ध्यान रखना, Q रिवर्सिबल बाय T है. अगर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकाल रहे हैं तो डेल्टा एस सिस्टम बाय T है. ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन देखें. पता करो. Which of the following entropy increases, decreases? सिंपल है ना? लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू अ सॉलिड, डिक्रीज हो गया. ऑब्वियसली क्रिस्टलाइजेज वर्ड है, फ्रीजेज नहीं है. अगर लिक्विड फ्रीजेज इनटू अ सॉलिड तो गड़बड़ हो सकती थी, बट क्रिस्टलाइजेज वर्ड मेक्स इट वेरी क्लियर. एंट्रोपी डिक्रीज होगी. हो सकता है अमॉर्फस बन जाए. अमॉर्फस की भी एक्चुअली एंट्रोपी कमी होगी, बट फिर भी एक पंगा है ना हमारे साथ, एग. ठीक है? टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन. एक बात का ध्यान रखना है, यहां पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद चाहे उसकी स्टेट नहीं बदली, लेकिन फिर भी वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी. और हम उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एट द टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली इंक्रीज तो होगा. ठीक है? बाकी दोनों के अंदर NaHCO3 सॉलिड गिव्स Na2CO3 सॉलिड एंड वाह वाह वाह. इसके अंदर तो बहुत सीधा सीधा दिख रहा है. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक 2 मोल सॉलिड के हैं, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 मोल सॉलिड, 1 मोल 2 मोल गैस हैं. So whenever there is an increase in number of gaseous, entropy has to increase. ठीक है? And here, hydrogen gaseous H2 gets converted into H. Left hand side पे 1 मोल गैस, right hand side पे 2 मोल. Entropy increases. वैसे यहां पे आफ्टर फ्रीजिंग नहीं, आफ्टर क्रिस्टलाइजिंग होना चाहिए था. ठीक है? ओके. चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए.
इसके अंदर स्पॉन्टेनिटी की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। टोटल एंथैल्पी की बात कर रहे हैं ना ये। इन्होंने काफी कुछ कंसिडर कर मारा है बेमतलब का। हमने पूरा डेरिवेशन किया था डेल्टा जी का, और उसके अंदर हमने ये लिया था कि व्हाट इज डेल्टा जी, फिर उसके बाद हमने ये देखा था स्पॉन्टेनिटी। फाइन, उन्होंने वही यूज कर लिया डायरेक्ट। ओवरऑल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। ओवरऑल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और इस पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज को ही हम डेल्टा जी का नाम देते हैं। सो वी गॉट द गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ओवरऑल नहीं, क्या 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 किसका? सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है ना, and overall entropy change is positive. System plus surrounding, total. Now delta G represents the total. लो जी, अब ये भी बताना, वैसे यहां पे बड़े कन्वीनियंटली भूल गए हैं कि डेल्टा जी इज एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तभी तो हम डेल्टा एच यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब डेल्टा जी इस रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी से कैसे रिलेटेड है? लो जी, आ गया वही हमने जो डेरिवेशन किया था प्यारा सा। आई थिंक इसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। Third law of thermodynamics is straightforward. The entropy of any pure crystalline substance approaches zero as the temperature approaches absolute zero. Simple. At absolute zero, the entropy of a perfect crystalline solid is zero. Okay. इक्विलिब्रियम के साथ हमने इसका एक इक्वेशन की हुई है। ओके, कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम करेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम की इक्वेशन तो कर ली ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ओके, सुनो, हमारे पास रिएक्शंस किस किस तरीके के हो सकते हैं? Here we have a reactant. ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहां पे हम जी प्लॉट कर रहे हैं, गिब्स एनर्जी। द इक्वेशन, ठीक है, यहां पर हम जी प्लॉट कर देते हैं। अदर इक्वेशन एंड वी प्लॉट द जी, और यहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं कॉम्पोजिशन। ठीक है, इस जगह पर हमारे पास प्योर रिएक्टेंट है, और यहां पर
हमारे पास प्योर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या क्या हो सकती है हमारे पास? व्हाट कुड बी द वेरियस ऑप्शंस दैट वी माइट बी हैविंग? वन ऑप्शन कुड बी that the Gibbs energy of the reactant is this and the Gibbs energy of the product is this. ठीक है, we find ये रिएक्शन कुछ ऐसे जाता है। ये रिएक्शन ऐसे जाता है। Then we could have the Gibbs energy of reactant here, product here. The reaction goes like this. ठीक है, the third case could be we have reactant and the product here. ये reactant की Gibbs energy है, product की Gibbs energy है. The reaction goes like this. अब देखो, इस ग्राफ में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है आपको। अगर रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी से ज्यादा है तो जो लोएस्ट गिब्स एनर्जी पोजीशन है दैट इज मोर टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। ये है हाईएस्ट गिब्स एनर्जी, दो लोएस्ट गिब्स एनर्जी पोजीशन। ठीक है, फाइन। इस लोएस्ट गिब्स एनर्जी पोजीशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। The position which has the least Gibbs energy is called the equilibrium. The system tries to attain it. यहां तक पहुंचने के लिए सिस्टम would lose energy. और यहां से आगे जाने के लिए it is not going to lose any energy. ठीक है, यहां से बल्कि ये जाना ही नहीं चाहता, तो इसलिए यहां पर आने के बाद इट्स नॉट गोइंग टू शो एनी चेंज इन गिब्स एनर्जी। यहां तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसके आगे पीछे नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। बेटा, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है वो अच्छा, स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल वर्ड मीन्स अ स्टेट विच द सिस्टम डज नॉट लाइक टू चेंज, या फिर जिस स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल एफर्ट्स की जरूरत होगी, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उसके बाद वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। यस, इवन प्रोडक्ट टू इक्विलिब्रियम आल्सो इट इज स्पॉन्टेनियस। अब एक बार देखो, अगर रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो जो इक्विलिब्रियम है दैट इज वेरी मच टुवर्ड्स प्रोडक्ट। मतलब ये इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा होगी अगर रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो। अगर रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी प्रोडक्ट से कम है तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स द रिएक्टेंट। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी बराबर है तो इक्विलिब्रियम एग्जैक्ट बीच में होगा।
ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे। ठीक है? अच्छा, ये देखो, हमारे पास दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं? एक है डेल्टा जी और एक है डेल्टा जी नॉट। ठीक है? डेफिनेशन लिख लो। डेल्टा जी, द चेंज इन गिब्स एनर्जी the change in Gibbs energy from one position to other position, the change in Gibbs energy from one position to the other position in the reaction is delta G. ठीक है? रुक जाओ अभी। While moving towards the equilibrium, delta G is negative. At equilibrium, the reaction does not have a tendency to go in any direction. Hence, its spontaneity and with that the delta G is zero. Delta G at equilibrium would be zero. ऋषिका वो जी है। जी और डेल्टा जी में फर्क है। ठीक है? अब फर्दर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज जी, डेल्टा जी नॉट। ठीक है? डेल्टा जी नॉट, delta G naught is the net Gibbs energy change when the amount of reactants given by a balanced chemical equation completely react to give the amount of product given by the same balanced chemical equation at a constant temperature of 298 Kelvin under a constant pressure of 1 bar. बेटा बात सिर्फ वही जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन है ना,
एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन है, वहां पे गिब्स एनर्जी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो डेल्टा जी किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक है, बट डेल्टा जी नॉट इज दिस, यहां से यहां का डिफरेंस, ये है डेल्टा जी नॉट। हम प्रोवाइड नहीं कर रहे बेटा, मैं प्रोविजन की बात नहीं कर रहा, मैं एनर्जी चेंज की बात कर रहा हूं, गिब्स एनर्जी चेंज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी चेंज। क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं। ठीक है, किसका? लिख लो, द गिब्स एनर्जी चेंज the Gibbs energy change when the amount of reactants given by a balanced chemical equation are completely reacted to give the corresponding amount of products at a constant pressure of 1 bar and a constant temperature. ठीक है, clear? At equilibrium delta G is 0, delta G not नहीं। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी मतलब जी में कोई चीज नहीं आएगा, वो जी नॉट आएगा। क्यों? जी नॉट तो स्टैंडर्ड है, उसका इक्विलिब्रियम से ऐसा कुछ है नहीं ना, इक्विलिब्रियम पे थोड़ा ना निकालते हम जी नॉट। अच्छा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई प्रॉब्लम? फाइन, पर ये डेल्टा जी नॉट हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन बता देता है। मतलब ये डेल्टा जी नॉट एक्चुअली गिव्स अस द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। हाउ डज इट गिव सो? हियर वी हैव द इक्वेशन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट गिव्स अस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, बट डेल्टा जी हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पोजीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता देता है। ठीक है,
ये इक्वेशन के लिए सीधा सीधा आपको ये लगाना पड़ेगा। कर सकते हो ना अब ये? हाँ, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एक बार देख लो, इसको हटका सा करके देख लो। नहीं, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं लग रहा बेटा, इसमें सीधी सीधी इक्वेशन है, फॉर्मूला है, उसमें लगा दो। क्या क्या हुआ? गिब्स एनर्जी चेंज दे रखा है तुम्हें, उसमें करना क्या, सीधा सीधा इक्वेशन तो लगानी है। लगा दो फटाफट, ये दोनों क्वेश्चन फटाफट कर लो, हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया है। ये समझ में आ गया? कोई बात नहीं, पता है मुझे, इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वो तो मुझे पता है, हो जाएगा। एनीवे, क्वेश्चन 14 तो वही है। किसमें? 13 को 14 सर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करने वाले हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा देखेंगे तो जरूर। So let's get along with the exercises.
Okay. ओके, क्या है इसका आंसर 6.1 का? सेकेंड। 6.2 का क्या? थर्ड। 6.3 का? सिक्स पॉइंट फोर का? क्यों? मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये कंबशन की इक्वेशन लिखी है आपने? सीधा आंसर दे देते हो। 6.4 का आंसर निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। थ्री। हम्म। थ्री है। ओके। बेटा यहाँ पे इक्वेशन ये यूज होगी ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। वही बात है, एनजीआरटी। इक्वेशन क्या है हमारे पास? CH4 gaseous plus 2CO2 gaseous gives CO2 gaseous plus 2H2O liquid। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3 मोल गैसेस है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 मोल गैस है। ठीक है, थर्ड बेटा। बेटा डेल्टा यू नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव चीज ऐड हो रही है। डेल्टा एन इज -2। ठीक है, 6.5। वन। 7 है 1। मे बी।
ठीक है ना? ठीक है, अभी हो रहा है आपसे? ये क्वेश्चंस तो है ना तुम्हारे पास? कर लो फटाफट। सिक्स पॉइंट सिक्स ठीक है अब? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो if delta H is negative and delta S is positive, the reaction is spontaneous at all temperatures. मजेदार बात है, एनसीईआरटी ने यही बात मेंशन नहीं की और टेबल वो वाला टेबल नहीं बनाया उन्होंने। वो वाला टेबल नहीं बनाया ना इन्होंने, जो हमने लास्ट में बनाया था। ये वाला, हाँ ये वाला टेबल ये रहा। किसका? 6.5 का -74.8 आया है बेटा, माइनस आ रहा है। ओके, 6.7 ठीक है। 6.7 का ठीक है। 307. हम्म। ओके, नेक्स्ट वाला 6.8। किया तुमने सौम्या? कितना आया इसका? 6.8 का देखो, जल्दी से करो। सर पहले से कर रखा है तो आंसर बताने हैं। नहीं नहीं, वैसे आप बता सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज और किसी को नहीं आ रही।
6.9 भी देख लो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट, इसमें क्या दिक्कत है 10 में? अच्छा, आंसर कंफर्म कर रहे हो। टेन किया तुमने सिद्धांत? कर लेना, ठीक है। 9 हो गया। हो गया। ठीक है, क्या? फ्यूजन, बिकॉज वी आर फ्रीजिंग इट, एनर्जी रिलीज हो गई ना। अगर एनर्जी रिलीज हो गई तो फ्यूजन वाली एनर्जी नेगेटिव हो गई ना, इट इज रिलीज्ड आउट। हम्म। सर हाँ जी। सर, डू यू कंसीडर योरसेल्फ जीनियस इन एनसीईआरटी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक? हम्म। क्या? सर, डू यू कंसीडर योरसेल्फ जीनियस इन एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ आ गया इसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आ गई? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ जीनियस। ओके सर।
हाँ भाई, हो गया। और 6.11 मुबारक हो। कहाँ से बचता है? ठीक है, क्लियर। 12th, ठीक है। 16.6.13 देख लें। ठीक है, अभी सिद्धांत आगे आंसर तो हमें समझ में आया कैसे करना है। ओके, ये तो इजी है, वही बेंजीन वाला जैसे है, बेंजीन ग्लूकोज वाला लास्ट 6.14। आगे आंसर। हाँ,
ठीक है, हो गया ये, समझ आ गया, सिद्धांत समझ में आ गया? ऋषिका, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग मी? हो गया था ये आपका? इसके लिए अगर बॉन्ड हैमर साइकिल बना ली जाती है तो बहुत इजी हो जाता है ये। क्या तुम्हारी? क्योंकि वी हैव टू टॉक अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड CCl4 टू C गैसियस एंड 4Cl, उसकी एनर्जी हमें निकालनी है। बेटा इसकी एनर्जी चाहिए ना, हमने इस इक्वेशन की एनर्जी चाहिए ना, तो हमें उल्टा चाहिए ना ये, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, माइनस माइनस करना पड़ेगा ना, ये ऐड हो जाएगा टोटल। इन सारी इक्वेशन से डील करके वी हैव टू टॉक अबाउट कौन सा ऐड होगा कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा। फाइनल इक्वेशन बनानी है ना हमें। हाँ तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव आएगा ना फॉर्म उसमें इक्वेशन में, क्योंकि उसको हम ऐड कर रहे होंगे, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, क्योंकि हमें उसको ब्रेक करने की एनर्जी चाहिए बेटा, फॉर्म करने की थोड़ी ना चाहिए। ठीक है, और हमें किसकी आंसर चाहिए? तो हमें उल्टा चाहिए ना, हमें बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी चाहिए, बॉन्ड जोड़ने की नहीं। हाँ तो कन्वर्ट करेंगे ना, तो जैसे भी हमें फाइनल इक्वेशन जैसे आएगी वैसे लेंगे ना। ठीक है, ठीक है,
ये कौन सा है 6.17? क्या हुआ, दिक्कत है इसमें? सर बोलो। विच ऑफ दी सर एक क्वेश्चन है। ये जो हम थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं उसका, हाँ जी सर। बोलो। Which type of ideal gas will have the largest value for Cp minus Cv? Monatomic, diatomic, polyatomic. The पॉलीएटॉमिक। value the एक value मिनट, एक will मिनट, be नहीं नहीं same नहीं for नहीं all. नहीं। हाँ, सेम है, सेम है, सेम है। सीपी माइनस सीवी पर मोल है ना। बताया तो था, सीपी माइनस सीवी फॉर ऑल गैसेस इज आर, द गैस कांस्टेंट आर। ओके, समझ आ गए? कोई दिक्कत? बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन ये है, फॉर एन आइसोलेटेड डेल्टा व्हाट बी द डेल्टा एस? For an isolated system, for a process taking place in an isolated system, delta S is always positive. ठीक है? For a reaction at this, delta H 400 kilojoule है, delta S 0.2 kilojoule per Kelvin per mole है. What temperature will the reaction become spontaneous considering this? तो spontaneous का मतलब है delta G is equal to 0. डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 के आगे हमें देखना पड़ेगा ना, इक्विलिब्रियम पहले पता करना पड़ेगा ना. ठीक है? अच्छा, यहां पे दोनों पॉजिटिव है. दोनों पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा होगा तब ये स्पॉन्टेनियस होगा. तो अभी हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कौन से टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम पे आएगा. तो उसके लिए हमें सीधा सीधा ये लेना पड़ेगा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस. तो टी निकाल दो. ठीक है? उस टी से ज्यादा टेम्परेचर पे इट इज गोइंग टू बिकम स्पॉन्टेनियस. कोई बात नहीं, फिर भी दे दिया. थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा इक्वेशन दी जाती है. नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन का यूज हो ना हो, दी जरूर जाएगी. ठीक है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. अब समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके. इक्विलिब्रियम, जब हम हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ही तो वो लेते हैं ना, इसका उसका कंपैरिजन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6.18, आई थिंक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. पहली बात, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो डेल्टा एस नेगेटिव है. दूसरा, बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी तो पक्का रिलीज होगी ना. बॉन्ड बनने में तो कभी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती. डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है.
ओके 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 ओके। अब इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालना है तो 298 केल्विन टेम्परेचर लेके डेल्टा जी नॉट निकाल दो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ना, लेकिन यहाँ पे तो एक गड़बड़ है। हाँ तो डेल्टा एच पहले निकालना पड़ेगा ना। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, और यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू -1 है। ठीक है ना। माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी, डेल्टा एन आर टी। ठीक है। यहाँ पे हमने 298 केल्विन पे कर दिया ना, स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं हम। क्या वो सिद्धांत हो गया? अगला क्वेश्चन तो आई थिंक इजी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 दे रखी है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। हाँ, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है। सर हाँ बोलो। सर मुझसे 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। कौन से? सर मैंने वो इसमें मैसेज करा है। एक बार देख लीजिए। कहाँ से लिए हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ से लिए बेटा? सर असाइनमेंट। कौन सा असाइनमेंट? सर मुझे मिला था कहीं से। कहाँ से मिला था? सर माय फ्रेंड गिव इट। क्लास, आस्क इट इन द क्लास। ओके सर। सर इट इज थर्मोडायनेमिक्स ओनली। क्लास में पूछना बेटा। ओके ओके। ठीक है। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6.21, कमेंट ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। देखो बेटा, कभी भी कोई भी किसी चीज की भी हमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात करनी होती है तो वी हैव टू गिव द टेम्परेचर आल्सो। यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट 298 केल्विन अंडर 1 बार प्रेशर। तो हमें वहां पे जब थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात करनी होती है तो हमें उसका डेल्टा जी निकालना होता है। A species which has a negative delta G of formation, that's going to be more stable, और जिसका positive delta G of formation, that's going to be less stable. ठीक है, तो चलिए अब हम इसका
जिसका बनना ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि वो लोअर एनर्जी पे है ना। वही तो मैंने आपको बताया था, जब ग्राफ बताया तो मैंने आपको यही कहा था ना कि अगर ग्राफ में अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका डेल्टा जी, उसका जी कम है, तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है। अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, दैट मीन्स द रिएक्शन विल बी मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो गया ना, उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, वैसे यहां पे इन्होंने डेल्टा एच से आंसर निकाला है, क्योंकि इसका एंट्रोपी चेंज तो जीरो है ना, तो यहां पे डेल्टा एच से आंसर निकल आएगा। नहीं, डेल्टा जी से भी निकलेगा, लेकिन डेल्टा जी के अंदर डेल्टा एस जो है जीरो है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे दोनों पे सेम नंबर ऑफ गैस मोल्स है ना, तो इसलिए यहां पे हम डेल्टा एच से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वाला आंसर बढ़िया सा है। एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग बहुत इजी सा है ना। एंथैल्पी चेंज इन द सिस्टम इज दिस, तो सराउंडिंग में +286 हो जाएगा। टेम्परेचर आपको दे रखा है स्टैंडर्ड कंडीशन 298, कर दो, हो गया आंसर। सिंपल सा, सीधा सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड है ना, और इक्वेशन दिए बिना तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि एंट्रोपी एंथैल्पी सारी की सारी एक्सट्रिंसिक क्वांटिटी है। तो अगर अमाउंट चेंज कर दिया तो सारी वैल्यूज बदल जाएंगी ना, तो इसलिए 1 मोल देना जरूरी हो जाता है। नहीं, स्टैंडर्ड वो 2 मोल के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए ये होता है ना बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, पर उसमें ये कहा गया कि 1 मोल होना चाहिए। ठीक है जी, बेटा देखो, एक्चुअली स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी डेल्टा जी से डिसाइड होती है, डेल्टा एच से नहीं। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें डेल्टा एस जीरो था, तो इसीलिए वी वर एबल टू गेट द आंसर बाय जस्ट डेल्टा एच। Yeah, we should do it with delta G. Thermodynamic stability is defined by delta G, not delta H. ठीक है, और इसी से हमारे पास एक बड़ा मजेदार सा आंसर आ जाता है, क्योंकि NO का फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक, इट्स thermodynamically unstable. That is why the atmosphere is not going into flames. नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना एटमॉस्फेयर में अभी तक। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंबशन, जॉइनिंग अगर स्पॉन्टेनियस होती तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होता ना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो इसके साथ हमने ऑफिशियली, अनऑफिशियली, प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर दिया है। हाँ, आपके लिए एक छोटा सा काम है, इसके अंदर एग्जाम्पलर हमने डिस्कस नहीं किए, तो एग्जाम्पलर आप करके ले आएंगे। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दे दिए ना मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास एग्जाम्पलर डिस्कस करके ले आइएगा, और हम अगली क्लास से, यानी कि दैट क्लास वुड बी ऑन आज मंडे है ना, हाँ फ्राइडे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए, बाय बाय। ओके बेटा।